Hey, what's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 29th of June. Today is Nifty's 1DT ahead of Nifty's monthly expiry. And the markets opened with a bit of a gap up, 24,060 के आसपास markets खुला, but within the first couple of hours itself, the markets were hugely volatile. 100 points up, 100 points down, yet again 100 points up, and then again the markets fell 100 points down. By 12 o'clock, the markets had already made a swing of more than 350 points, while the straddle itself was pricing an open of 180. So 210 rupees पे straddle close हुआ था on Thursday evening, and it was kind of expecting absolutely no surprises over the long weekend. But over the weekend, there were news where US again started to attack Iran, and Iran again started to demand that it regains the control over the Strait of Hormuz. But the global markets didn't seem to bother about all these minor details, and because of that, the markets didn't gap much. And जो pricing किया था 210 rupees, उसके अंदर ही market खुला. But when the markets opened today at 180-ish rupees straddle open, the markets moved much more than what the premiums were implying. So 12 o'clock के पहले almost 3-4 times 100 point के रेंज में ऑलरेडी बाउंस कर लिया था मार्केट, एंड पोस्ट 12 o'clock 24,000 लेवल गॉट टेकन आउट, एंड देन फ्रॉम देयर द मार्केट्स फेल अनदर 80-90 पॉइंट्स, एंड थ्रू आउट द डे द स्ट्रैडल केप्ट चॉपिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर. जो 180 रुपीज़ पे स्ट्रैडल क्लोज हुआ था, इट मेड अ लो ऑफ 160, अगेन शॉट बैक टू 185, then again it went to 160, came back to other 170. So throughout the day, the straddle kept chopping without giving any considerable decay up until 3 o'clock. And at 3 o'clock today, there were huge volumes in the index because of the index rejig. तो quarterly index पे rejig होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो वेट्स है वो चेंज होता है, एंड इट वॉज दैट डे टुडे फॉर निफ्टी. सो बिटवीन 3 o'clock and 3:30 देयर वॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉलिटिलिटी. द लास्ट टाइम सिमिलर काइंड ऑफ अ डे हैपेंड, देयर वॉज अ डायरेक्शनल मूव, अ 200 पॉइंट कैंडल हैड फॉर्म्ड आफ्टर 3 o'clock, बट फॉर्चुनेटली टुडे ऐसे 200 पॉइंट का कैंडल फॉर्म तो नहीं हुआ, बट विद इन 70-80 पॉइंट रेंज द मार्केट्स डिड मल्टीपल चॉपिंग इन द लास्ट 20 minutes of action. So finally 150 रुपीज़ पे स्ट्रैडल क्लोज दिया है, which means that 110-120 के बीच में कल स्ट्रैडल ओपन होने वाला है, and tomorrow being a monthly expiry, and tomorrow also marks the third consecutive Nifty's expiry where Nifty is likely to hover around 24,000 levels. इसके लास्ट दो एक्सपायरीज भी 24,000 के आसपास ही होवर किया था, बट ऐसा नहीं कि 24,000 के इन एंड अराउंड 50 पॉइंट्स के बीच में एक्सपायरी होने वाला है. मार्केट्स मूव्ड अ 200 पॉइंट प्लस मूव ऑन प्रीवियस निफ्टीज एक्सपायरी, वेयर द मार्केट्स काइंड ऑफ टैंक्ड फ्रॉम 24,150 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 23,950 लेवल्स, एंड उसके पहले वाला एक्सपायरी भी काफ़ी वोलेटाइल रहा, बट नॉनदलेस द मार्केट हैज़ बीन ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स 24,000 लेवल्स ऑन द एक्सपायरी डे. सो अगेन टुडे मार्केट्स क्लोजिंग in and around 24,000 levels, and most probably कल भी 24,000 के अराउंड ही मार्केट्स घूमने वाला है, but expect a lot of volatility considering that tomorrow is Nifty's monthly expiry. So let's get to terminal and let's plan for tomorrow. So डेली चार्ट पे ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं. सिमिलर हाइपोथेसिस वर्क्स आउट. 24,250 विल बी द फ्रेश लोकल मैक्सिमा, एंड मार्केट ने 24,000 के नीचे आज काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रेड किया है. ऑलमोस्ट मोर देन 3.5-4 आवर्स मार्केट हैज़ ट्रेडेड बिलो 24,000 लेवल्स. ऑलमोस्ट 12 o'clock से मार्केट्स ने 24,000 के नीचे ही ट्रेड किया है, एंड इवन आफ्टर द रीजिग वी डिडंट सी एनीथिंग पुल बैक टुवर्ड्स 24,000 लेवल्स, एंड मार्केट्स नॉट बीइंग एबल टू होल्ड 24,000 लेवल्स इज अगेन अ cause of concern. But I would not be too early to judge where the market's gonna go, because मैं ये लेवल को काफ़ी गौर से मैं देखने वाला हूँ. जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं देता, आई विल नॉट बी वेरी क्विक इन सेइंग दैट ओ मार्केट्स हायर लेवल्स को होल्ड नहीं कर रहा है तो मार्केट्स नीचे आने वाला है. तो अगर हमारा बायस जो है उसको बुलिश से बेरिश कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो देन वी नीड अ डेली क्लोजिंग बिलो दिस लेवल विच इज़ 23,750 लेवल्स. ठीक है, अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो आज का दिन अगेन एक्सट्रीमली वोलेटाइल. आई हैव बीन टेलिंग दैट नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग तो डेफिनेटली करना नहीं चाहिए. इफ समबडी ट्रेडेड नॉन डायरेक्शनल टुडे, दे वुड हैव बीन chopped throughout the day, because यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इज 24,110 से लेके 24,000 तक ऑलमोस्ट 110 पॉइंट का स्विंग था, एंड देन अनदर 120 पॉइंट्स का स्विंग था, एंड देन अनदर 120 पॉइंट्स का स्विंग था. ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का स्विंग ऑलमोस्ट विद इन द फर्स्ट
फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ही ऑलमोस्ट हो गया. उसके बाद अनदर 80 to 90 पॉइंट ऑफ मूव एंड देन अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत चॉपिंग हुआ. ऑफ कोर्स इस चॉपिंग में मैक्सिमम टाइम आपको कोई डेल्टा हेजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी रहेगी, बट ऑफ कोर्स पहले ये जो मूव में काफ़ी ज़्यादा डेल्टा हेजिंग आपको करनी पड़ेगी बिकॉज देयर वाज एब्सोल्युटली नो क्रश इन द वॉल्स, देयर वाज नो टीटा डीके पर से, बट मार्केट कंटिन्यूसली 100-120 पॉइंट्स का कंटिन्यूसली मूव कर ही रहा था. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, मार्केट येस 24,000 की इन एंड अराउंड ही होवर कर सकता है, बट उसके बावजूद भी आपके हाथ में कोई पैसा नहीं मिलेगा इफ़ यू सिट ऑन 24,000 स्ट्रैडल्स. नाउ टेल मी, आप 24,000 स्ट्रैडल्स डे स्टार्टिंग में ही आप बनाए तो भी आपका कोई पैसा नहीं बन गया होगा बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट मूव्स एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट डेल्टा हेजिंग द मार्केट शुड हैव फोर्स्ड यू इनटू. तो अगर स्ट्रैडल की बात करें तो एज आई सेड थ्रू आउट द डे द स्ट्रैडल केप्ट चॉपिंग एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो राहत फॉर द सेलर्स एंड ओनली आफ्टर 3 o'clock दैट वी स्टार्टेड सीइंग सम अमाउंट ऑफ डीके 170 से लेके 150 तक एक 20 पॉइंट्स का डीके 3 o'clock के आसपास आया एंड 3 o'clock के आसपास यू कुड इवन नोटिस दैट देयर वर a lot of exits from the straddlers because everybody expected that वो last time जब ये निफ्टी का इंडेक्स रीजिंग हुआ था उस टाइम पे 200 पॉइंट का एक बड़ा कैंडल बना था. तो you could see that between 240 and 255 एक लास्ट 10 minutes में you could literally see that prices of both calls and puts slowly going up. It was basically option writers exiting their positions, not taking any sorts of risk because एक 100-150 पॉइंट का अगर 5 मिनट में कैंडल बन जाता with such low premium base it would be disastrous. So everybody exited the positions and 3 o'clock के आसपास जब markets light हुआ that is when the markets kind of gave a 20 point of crush in the last 20 minutes. तो अगेन कल के लिए 110-120 के बीच में स्ट्रैडल खुलने वाला है. Don't be surprised if the market opens at even 100 rupees का straddle and 100 rupees का straddle again आप देखो, आप खुद चेक करो कि 100 rupees का straddle whether it is sufficient to trade the current market's volatility. आप देख सकते हैं कि 24,120 is the high and 23,900 is the low. So almost 200 point का एक range already form हो चुका है. तो कल के लिए मेरा एक फेवरेबल सिनेरियो ये है कि मार्केट्स 24,000 के आसपास खुले एंड मार्केट्स फर्स्ट 1 आवर में एक मूव दे, बेसिकली एक 70-80 पॉइंट का मूव दे इधर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड. जब मूव आता है देन आई वुड इनिशिएट अ 24,000 स्ट्रैडल, एक स्क्यूड स्ट्रैडल में इनिशिएट कर सकता हूं when the market is either here or when the market is either here. जब मार्केट 24,100 के आसपास आता है then also I can open a 24,000 straddle expecting the markets to again gravitate towards 24,000 levels and when the market comes to 23,930 23,920 levels then also I can initiate a skewed straddle at 24,000 levels expecting the markets to gravitate towards 24,000 levels. Now some people might ask जब मार्केट 24,000 लेवल पे बैठा है then why won't you initiate? तब क्या होता है कि एट द मनी स्ट्रैडल का प्राइस जो होता है वो सबसे लीस्ट रहता है एंड ऑल्सो जब मार्केट ये डेल्टा मूव देता है अपसाइड एंड डाउन साइड देन आपका मार्क टू मार्केट मूव होने का और बहुत ज़्यादा वेरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है बिकॉज स्ट्रैडल आपको 110 रुपीज़ के आसपास आपको ओपन मिलेगा. तो देन एक्सपेक्ट 55 रुपये का कॉल ऑप्शन एंड 55 रुपये का पुट ऑप्शन. सो इवन इफ द मार्केट मूव्स लेट्स से 50 पॉइंट्स ऑल्सो दिस 55 रुपये का ऑप्शन विल मूव टू अराउंड 80 रुपीज़ एंड दिस 55 का ऑप्शन विल बी मूविंग टू समवेयर अराउंड 25 रुपीज़. सो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑलरेडी स्क्यूनेस डेवलप हो जाता है एंड यू वुडंट बी एबल टू होल्ड ऑन टू दिस पोजिशन एंड ओवर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर थोड़ा बहुत IV स्पाइक आ जाता है तो देन एक्सपेक्ट द मार्क टू मार्केट लॉसेस to mount. So instead of that, if you wait for the markets to actually give a move and then start to build the positions, then आपका जो हेड स्टार्ट है वो आपको हेड स्टार्ट मिल जाता है, मार्क टू मार्केट हेड स्टार्ट मिल जाता है एंड थोड़ा बहुत आपका डायरेक्शन में मार्क टू मार्केट आ जाता है तो बेसिकली आपको एक डायरेक्शनली एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट ग्रीन मार्क टू मार्केट. सो मेरा जो आइडिया है वो है. नाउ can you not trade 24,000 straddle and just short the put option when the market comes here and when can you not short just the call options when the market comes here? Of course yes, I would be looking for that as well. अगर मान लो कि मार्केट बहुत स्लोली यहाँ पे आता है एंड
ऑपोजिट साइड का जो प्रीमियम बिल्कुल जीरो के बराबर है, बहुत कम है, तो देन इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग अ 24,000 स्ट्रैडल आई माइट इवन जस्ट शॉर्ट एट द मनी ऑप्शंस विथ पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, स्विंग को स्टॉप लॉस यूज करके मैं शॉर्ट कर सकता हूं. बट अगेन जब नेकेड ऑप्शंस हम लोग शॉर्ट करते हैं स्टॉप लॉस रख के, देन एक्सपेक्ट दैट योर स्टॉप लॉस इज गोना गेट टेकन आउट, एक्सपेक्ट दैट योर स्टॉप लॉस इज गोना गेट हंटेड एंड मे बी आपको एक बार या दो बार री एंट्री भी करना पड़ेगा. नाउ अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, लेट्स से 23,300 के आसपास ओपन होता है एंड देन इफ द मार्केट स्टार्ट्स टू ब्रीच दिस लेवल, देन यहां पे मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहां पे मल्टीपल पॉइंट्स पे मार्केट्स को डिमांड मिला है. फर्स्ट डिमांड लेवल इज दिस 24,870 लेवल एंड देन द नेक्स्ट डिमांड लेवल इज समवेयर अराउंड 23,830 levels. So instead of trying to capture this move, I'd rather wait for the markets to actually trap all the put writers, and puts में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्पाइक आता है, तो देन इस बैंड में कहीं ना कहीं मैं पुट ऑप्शंस को सेल कर सकता हूं इसके नीचे वाला स्ट्राइक्स का, दैट इज 23,750 एंड 23,800 पुट्स को मैं शॉर्ट कर सकता हूं इफ आई don't exactly build my positions in this and if I don't get hurt mark to market wise in this move. तो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस लेवल को तोड़ेगा तो I would not go short but rather I would let the markets to travel wherever it wants. and यहाँ पे किसी भी इस रेंज में, ये क्योंकि यहाँ पे बड़ा रेंज बन जाता है बिकॉज लाइक बड़ा बड़ा कैंडल्स है, मार्केट्स कहीं पे भी यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं. मार्केट कैन टेक अ सपोर्ट फ्रॉम हियर, मार्केट कैन टेक अ सपोर्ट फ्रॉम हियर, इवन मार्केट कैन टेक अ सपोर्ट फ्रॉम हियर. तो कहीं पे भी मुझे पैटर्न नजर आता है, दैट इज इधर अ डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न और एक एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ पैटर्न, या 5 मिनट में एक अच्छा वाला एक रिजेक्शन कैंडल मिलता है, तो देन वहीं से मैं सिर्फ पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकता हूं दिस एंड उसके नीचे वाला लेवल्स का शॉर्ट कर सकता हूं. एंड व्हेन आई गेट अ पुल बैक टुवर्ड्स दिस लेवल, वापस इस लेवल पे पुल बैक अगर मिलता है तो देन ऑलरेडी मेरा मार्क टू मार्केट ग्रीन पे रहता है बिकॉज आई हैव शॉर्टेड द पुट्स एट ऑलमोस्ट एलिवेटेड प्राइसेस. एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कॉल्स को भी शॉर्ट करके इसको स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल पे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं. नाउ यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होके देन लेट्स से इस कंसोलिडेशन रेंज को ऊपर से तोड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? अगर ऊपर से तोड़ेगा तो देन इट अगेन आई वुड जस्ट वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली कम टू दीज लेवल्स. लाइक यहाँ पे आने के लिए मैं वेट करूंगा 24,100 24,080 के आसपास आने के लिए वेट करूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं मीन रिवर्शन ट्रेड लूंगा. अगेन व्हेन आई से मीन रिवर्शन ट्रेड, you can short the calls with stop losses, you can short a बेयर कॉल स्प्रेड्स को कर सकते हैं, या आप डेबिट पुट रेशियोज कर सकते हैं, डेबिट पुट रेशियोज को भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और आप एक स्क्यूड स्ट्रैडल को भी ट्रेड कर सकते हैं. क्यों स्क्यूड स्ट्रैडल बोले तो जैसे मैंने फर्स्ट केस में बताया 24,000 लेवल पे आप स्ट्रैडल भी बना के ट्रेड कर सकते हैं. नाउ बड़े गैप अप्स का या गैप डाउन्स का क्या करना है? लाइक इफ इट इज अ ह्यूज गैप अप, अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो देन यूज दैट गैप अप टू एक्चुअली शॉर्ट 1 or 2 strike OTM calls with probably 100% stop loss, बिकॉज बड़ा गैप अप के बाद एक कॉल्स में काफ़ी अच्छा स्पाइक आया रहता है, तो यूज दैट. एंड अगर वो ऑप्शन मार्केट कंटिन्यूसली गैप को होल्ड करके कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टडीली ऊपर जाना शुरू करता है, ग्राइंड करना शुरू करता है, यू कैन कन्वर्ट दिस OTM कॉल इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रैडल एट दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक इटसेल्फ. सिमिलरली अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, लेट्स से 23,900 के नीचे अगर खुलता है, देन आई वुड वांट to use that particular gap down to short the puts 23,800 and below का puts. and जब मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, इसके नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देता है, then probably I'll add 23,800 का calls and convert it into a 23,800 straddle. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस टुमारो मंथली एक्सपायरी है, वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहेगा एंड प्रीमियम्स कम है एंड मार्केट्स 24,000 के अराउंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल तरीके से मार्केट मूव कर सकता है. वी ऑलरेडी सॉ इट ऑन सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक काफ़ी वोलेटाइल एक्सपायरी रहा है. एंड पोस्ट 2 o'clock अगेन don't forget to expect the gamma blast on both the sides. तो the idea is to not lose mark to market before 12 o'clock. अगर 12 o'clock के आसपास आपका mark to market ऑलरेडी बहुत डीप रेड में चला गया है, then it becomes extremely hard to recover that because 2 o'clock के बाद तो continuously market चॉप करेगा ही एंड उसके साथ साथ आपको डेल्टा मूव में भी आपका mark to market का लॉस होने वाला है. ठीक है. दिस इज मोटा मोटी माई प्लान फॉर टुमारो एंड या as I said, the best scenario would be the markets opening around 24,030 24,040 and इसके बीच अगर मार्केट रहेगा तो yes probably थोड़ा बहुत सेन एक्सपायरी हो सकता है. बट लेट्स से मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो देन येस अ लॉट ऑफ पीपल वुड कम एंड शॉर्ट 24,000 कॉल्स थिंकिंग दैट 24,000 का तो आज ब्रेकआउट नहीं होने वाला है.
then markets might absorb the liquidity here and suddenly make a sharp move towards 24,000 levels, where 24,000 का कॉल ऑप्शन 7-8 रुपए पे जो रहता है उसको स्पाइक करा देता है 50-60 रुपीस तक, एंड ऑफ कोर्स 2 o'clock के बाद वाला जो रूटीन सीन है वो प्ले आउट हो जाएगा. ऑलराइट, सो I'll see you guys after tomorrow's expiry. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.